Morning students. In the previous video we have completed the vocabulary part. Now we are going to continue from the grammar section. Noun phrases. A noun phrase is a phrase that plays the role of a noun. Noun phrase वो होते हैं जो role play करते हैं noun का. Noun means naming words. The head word in a noun phrase will be a noun or a pronoun. तो जो नाउन का जो हेड वर्ड है वो होगा नाउन या प्रोनाउन. इन द एग्जाम्पल्स बिलो, इन एग्जाम्पल्स में द नाउन फ्रेज इज अंडरलाइन एंड द हेड वर्ड इज इन बोल्ड. यहाँ पर नाउन फ्रेज अंडरलाइन है और उसका जो हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, वो बोल्ड से लिखा हुआ है. जैसे आई लाइक सिंगिंग इन द बाथ, तो ये पूरा नाउन है लेकिन सिंगिंग इज अ हेड वर्ड. आई नो द बैक स्ट्रीट्स, सो स्ट्रीट्स. आई हैव मेट द लास्ट रिमेनिंग चीफ, तो चीफ यहाँ पर क्या है, बोल्ड वर्ड. कंपेयर द 3 एग्जाम्पल्स अबव टू दीज. आई लाइक इट, आई नो देम, आई हैव मेट हिम. तो इसमें क्या किया हमने, नाउन को हटा के पूरा प्रोनाउन लिख दिया, इट, देम और हिम. इन दीज 3 एग्जाम्पल द वर्ड्स आर बोल्ड आर ऑल प्रोनाउंस. यहाँ पर ये सारे तीनों वर्ड प्रोनाउन है. द एबिलिटी टू रिप्लेस द नाउन फ्रेजेस द फर्स्ट 3 एग्जाम्पल विद द प्रोनाउंस प्रूव्स दैट द अंडरलाइन फ्रेजेस आर फंक्शनिंग एज नाउन मेकिंग देम नाउन फ्रेजेस. तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम नाउन को हटाकर प्रोनाउन लिखते हैं. ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये ऐसे ही फ्रेजेस में भी होता है. लाइक एनी नाउन, अ नाउन फ्रेज कैन बी, नाउन फ्रेज कैसे होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट. नाउन phrases are extremely common. वो होते कॉमन. अ नाउन विद एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफायर इंक्लूडिंग जस्ट अ नंबर और एन आर्टिकल इज नाउन फ्रेज. अगर नंबर है या कोई आर्टिकल है उसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. अब उसके कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द एटम बॉम्ब इज नॉट टू बी देयर व्हेन इट गोज ऑफ. तो इस एग्जाम्पल में नाउन फ्रेज क्या होगा, द नाउन फ्रेज द एटम बॉम्ब इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, एटम बॉम्ब. प्रिपोजिशन है अगेंस्ट. द प्रिपोजिशनल फ्रेज अगेंस्ट द एटम बॉम्ब मोडिफाइज डिफेंस, और इसी से पता चल रहा है कि डिफेंस हो रहा है. आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर्स मेडन नेम. मेरा बैंक अकाउंट नहीं है क्योंकि मुझे मेरी मदर की मेडन का नेम नहीं पता. इन दिस एग्जाम्पल बोथ नाउन फ्रेजेस आर, इसमें पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है. द बेस्ट कार सेफ्टी डिवाइस इज अ रियर व्यू मिरर विद अ कॉप इन इट. और इस एग्जाम्पल में फर्स्ट फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसके बारे में कुछ बोलना. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस more clearly by solving the exercises. Come to exercise number A of page number 72. Circle the noun phrase in each sentence given below. We are going to circle on the noun phrase. तो यहाँ पे noun phrase क्या होगा, has anyone seen the little green parrot. Anyone and the little green parrot is the noun phrase. She is my favorite English teacher. My favorite English teacher is noun phrase. The kids were surprised by the summer rain. Kids as well as summer rain. The summer rain will be noun phrase. We are excited about the championship game. Championship game is noun phrase. He gave the crying child a toy to play with. The crying child. And I decided to walk down the yellow brick road. To walk and the yellow brick road will be noun phrase. I went to watch the beautiful play. To watch or the beautiful play will be the noun phrase. I picked the dark horse to win the race. The dark horse, the race will be the noun phrase. So we have completed exercise number A. Now come to page number 73 for exercise number B. So exercise number B is choose correct noun phrase to complete the following sentence. So first one is children usually enjoy. Children usually enjoy standing about in a cold wet wind. तो हम लिखेंगे standing about in a cold wet wind, full stop. Dash did me no good. To go home did me no good. The boy wants playing cricket. Playing, playing cricket. I tried early to bed.
early to bed. Dash is my ambition, becoming a successful lawyer. Becoming a successful lawyer. Dash is a good maxim, to get the sum right. To get the sum right. Dash precedes good actions. Thinking good thoughts. Thinking good thoughts precedes good actions. Have you ever tried dash climbing a coconut palm? Climbing a coconut palm. So here we have completed our exercise number B of vocabulary part also. So now we will go through page number 74 for the writing section. So in the writing section they are saying, imagine that you are in a different city to play a match or take an exam. तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप किसी दूसरी सिटी में हो जिसमें आप मैच खेलने गए हो या एग्ज़ाम देने गए हो. हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करोगे, एक्साइटेड कि नर्वस. तो आपको आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है डिस्क्राइब करके आपका एक्सपीरियंस कि अगर आप बाहर गए तो आपके साथ क्या क्या हुआ, एंड दैट यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद अवर न्यू चैप्टर.